Assalamu alaikum, my dear students. I am Ms. Assi Asif and today I am going to teach you about the Potwa Plateau and the salt range. So, when I am starting about the Potwa Plateau and the salt range, let me explain you first the difference between hill and plateau. My dear students, hills are basically smaller than mountains, yes, they shape like this, and whereas the plateau, they are having a broad top. This is the plateau, right? So hills basically they are lower than a mountain, whereas plateau, the difference in the plateau is that the plateau are flat from the top. Alright, okay, with this, let's now just identify the location of Potwa Plateau. Alright, students, so please check this out that Potwa Plateau is in the Upper Punjab, right? It's in the Upper Punjab, alright, and what you can see that you are having two main hills in the Potwa Plateau. One is Margala Hill, the another is Kala Chetta Hill. मरगिरा हिल से किस किस को मोनाल रेस्टोरेंट याद आया? अगर आ गया तो बिल्कुल एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट आप सही लोकेशन पे पहुंचे. And the salt range, the salt mine, can you see the salt range is in the south of the Potwa Plateau. So this is the location basically. It is on the west you have River Indus, on the right you have, okay, let me check this. On the west you are having River Indus and on the east you have River Jhelum. So it is between the River Indus and the River Jhelum, right? Okay, so let's moving ahead. Let me show you one more time from here as well. Can you observe Potwa Plateau and the salt range? Okay, so with this, let's move ahead. Alright, so it's time to discuss the location and location. The location is basically that the Potwa Plateau is in the Upper Punjab, right? As I have shown you in the map, it's in the Upper Punjab, and the Margala Hills and the Kala Chetta Hills, that is in the north, whereas the salt range is in the साउथ. ओके, अगर हम रिलीफ की बात करें तो रिलीफ आपका फ्लैट और ओपन लैंड फॉर्म्स आपको मिलेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द हाइट. ओके बेटा, आपके पोटवा प्लाटू की हाइट 300 to 600 मीटर्स है, लेकिन आपकी सॉल्ट रेंज की हाइट डिफरेंट है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट वी नीड टू क्लासिफाई द हाइट, वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइट ऑफ दीज टू. ओके, yes, the one and the important thing to remember about the Potwa Plateau is the bad land topography, the dissected and the erosional landform. ये सब है क्या? Dissected, bad land topography. Alright, so let's just explore all these things. Now can you observe these pictures, right? With this image, I'm trying to understand. Can you just see a flat top? The flat top is indicating a plateau, right? But can you see these dissected areas? ये कटे हुए areas आपको नजर आ रहे हैं बेटा? The uneven land, what are these? Basically, they are due to the erosional landform. Sometimes we are having a mountainous ranges or we have a plateau, right? Let me draw it again for you. Sometimes we have a plateau, right? आपके पास plateau में कभी कभी hard rock and soft rock होते हैं. So if we are having a soft rock, don't you think the chances of erosion will be more? Exactly. So when we have a rain, okay, rain की वजह से जब rainfall होती है बेटा, तो आपके जो ये mountainous ranges हैं ये erode हो जाते हैं. So can you see these areas? आप ये देख रहे हैं यहाँ पे. Can you just observe these areas? आखिर ये erode क्यों हुए? Why they are not flat? Why there is a distance? Because of the erosion, right? What is erosion? Wearing away of the rock, right? ये wear away क्यों हुआ? Rainfall, wind, due to different reasons, the climatic conditions. If they are wearing away because they were soft rock, और यही same condition आपकी पोटवा प्लाटो में है. Due to soft rock, आपके पास different dissected areas हैं, कटा हुआ area है, ravines हैं, what are ravines? गलीज हैं, आपके पास ट्रू है, राइट? तो बेटा ये ज्योग्राफिकल डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, ये सब इस वजह से है क्योंकि आपका पोटवा प्लाटो का डिवीजन है, इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट रॉक, इसकी वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं. ठीक है, ओके, सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम अ बैड लैंड टोपोग्राफी. नाउ हियर इज द रियल पिक्चर, रियल इमेज ऑफ द पोटवा प्लाटो, एंड दिस इज द रिवर स्वान दैट यू आर हैविंग. द रिवर स्वान, oops, it's okay. Now can you see the river Swan over here, right? So with this, can you just see that in this picture, although it's not that much clear जो आपको exactly idea देगा आपको dissected area का, but still can you see the area? Let me see. Alright, so can you just see the area over here with this? Okay, all these are having erosional landforms. Okay, so let's move towards the drainage pattern. Now the drainage pattern, the main river Swan, I'll show you in the previous picture. It is the major river of this area.
River action has created gullies and ravines. All right, ravines को हम आपको इस पिक्चर पे शो कर सकते हैं. Deep narrow valleys. Okay, they are basically shallow valleys. ये बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होती है, जैसे हमारी गॉर्ज जो होती है वो बहुत ज्यादा डीप होती है, स्टीप डीप वैली होती है. Ravines are basically small valleys. Can you just see? These are ravines basically, right? So ये ravines क्यों बनी? क्या वजह थी? ये तो एक पूरा माउंटेन बना हुआ था. What was the reason? ये तो भाई एक अच्छा खासा हमारे पास एरिया था. So who cut this out? Due to erosion, this area just wear away. And why this was wear away? Because it was having a soft rock. Okay. Okay. So if I talk about the drainage, the river Swan, which dominates the region, and the river action has been created by the gullies, ravines, ये तमाम features बन जाते हैं आपके. Okay. और erosional landforms बनते हैं. Okay. The regional also have a large alluvial plains. Okay. Now talk about the economic potential. Yes, rich in rock salt, gypsum, limestone. बेटा अगर एक बात आप ऑब्जर्व करो, हमने चाहे नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ा हो या वेस्टर्न पढ़ा हो या अब हम पोटरा प्लाटू डिस्कस कर रहे हैं. हैव यू ऑब्जर्व दैट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद मिनरल्स. वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट एरियाज, बट वी आर रिच इन मिनरल्स अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, यहाँ पे आपके पास आ जाती है अटक ऑयल रिफाइनरी. अटक ऑयल रिफाइनरी की अगर मैं पोटरा प्लाटू में बात कर रही हूँ, तो जो क्रूड ऑयल होता है बेसिकली इसको यहाँ पे आके रिफाइन किया जाता है. तो ऑब्वियसली बेटा जब आपके पास अटक ऑयल रिफाइनरी है तो सेटलमेंट होगी यहाँ पे, राइट. इसके इर्द गिर्द सेटलमेंट होगी क्योंकि ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो डेफिनेटली पॉपुलेशन भी होगी. देन एग्रीकल्चर आपका यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है थ्रू बारानी फार्मिंग. व्हाट इज बारानी फार्मिंग? रेन शेड फार्मिंग. रेन शेड फार्मिंग यानी कि वो फार्मिंग जो सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट होती है. ओके, तो व्हीट इज द मेन क्रॉप ओवर हियर. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मिनरल की कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर हैविंग रिच इन मिनरल्स दीज एरिया, तो यहाँ पे हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास जिप्सम इंडस्ट्रीज हैं, नॉट जिप्सम इंडस्ट्रीज, माय बैड. ऑलराइट, सीमेंट इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं. इसके अलावा सॉल्ट माइनिंग हो रही है सॉल्ट रेंज में. इकोनॉमिक पोटेंशियल की हम बात करें तो हमने आपको क्या डिस्कस किया? इकोनॉमिक मेनली अगर मैं इकोनॉमिक की शॉर्ट फॉर्म में करूँ, वी हैव मिनरल्स, वी आर हैविंग agriculture, barani farming over there, then we are having industry, cement industry, we have gypsum based products also. Okay, let's quickly move ahead. Challenges. Okay, सबसे पहली बात जो चैलेंजेस की बात करेंगे, बैडलैंड टोपोग्राफी को फौरन ध्यान में ले आना कि बैडलैंड टोपोग्राफी की वजह से डेफिनेटली हमें चैलेंजेस हो रहे हैं. ओके, हमारे पास अनरिलायबल लेन है, रेनफॉल है, बरानी फार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से डिपेंडेंस हम सिर्फ मानसून पे रखते हैं. और वेस्टर्न डिप्रेशन हम इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करेंगे क्लाइमेट के चैप्टर में. ठीक है, अभी हम जिस आपको बता रहे हैं कि टू सोर्सेज हैं यहाँ पे बारिश की, एक तो मानसून रेनफॉल होती है और एक वेस्टर्न डिप्रेशन के थ्रू रेनफॉल आती है. लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि लोग सिर्फ अपने रेनफॉल पर डिपेंडेंट करते हैं. नाउ विद दिस एज पीपल आर यूजिंग बोरिंग, दे आर यूजिंग द अंडरग्राउंड वाटर फॉर द एग्रीकल्चर. ओके, soil erosion caused by the formation of gullies, ravines, reducing fertile land. Obviously क्योंकि erosion हो रही है, fertile land आपका कट के बह रहा है, पानी में आगे जा रहा है. ठीक है, वेटलैंड टोपोग्राफी आपकी कल्टीवेशन को डिफिकल्ट बना रही है और लैक ऑफ इरिगेशन की वजह से आपके पास हैवी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर का, जो कि आपका मानसून पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है. ऑलराइट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व बेटा, कैन यू सी दीज कट ऑफ चैनल्स? कैन यू सी ये क्यों कट ऑफ हो गए? इरोजन की वजह से, राइट. ये कट ऑफ हो गए और इन्होंने बना दी गलीज. दीज आर द गलीज. ओके, की टर्मिनोलॉजी बरानी फार्मिंग हमने यूज किया, हमने आपको बताया दैट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल. ठीक है, रेन क्रॉप व्हीट है. रवीन, डीप नैरो वैलीज हमने एक पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया. गलीज का बताया जस्ट मैंने अभी आपको गली एक्सप्लेन किया. इट्स अ स्मॉल स्टीप साइडेड चैनल कार्व्ड बाय द रनिंग वाटर. वेटलैंड टोपोग्राफी, अ रगेड लैंडस्केप विद रिजेस, ravines एंड थ्रो क्या होते हैं? गली, राइट. Let's now begin with the salt range. अगर मैं salt range की बात करूं, क्विकली हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे. It's in the south of Potwa Plateau. Alright, मैप के थ्रू आपको बताया था. ये कवर करता है झेलम का इलाका, कालाबाग और मियांवाली डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है. यहाँ पे यस पैरेलल रेंजेस मिलती हैं आपको, बिल्कुल पैरेलल रेंजेस मिलेंगी आपको. यहाँ के रिलीफ की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे फ्लैट लैंड नहीं कहोगे, बल्कि आप बताओगे कि यहाँ पे पैरेलल रेंजेस है. हाइट मैंने आपको पहले भी कहा था कि याद रखिएगा हाइट, क्योंकि अब हाइट में डिफरेंशिएट कर सकते हो बेटा. हाइट ऑफ पोटवा प्लाटू, हाइट ऑफ सॉल्ट रेंज, इट इज 750 to 900 मीटर, राइट. आपकी पोटवा प्लाटू की हाइट में आपकी सॉल्ट रेंज की हाइट में डिफरेंस है. ठीक है, ओके. साकेश्वर पीक इज द हाईएस्ट वेटलैंड फॉल्टेड एंड इरोडेड एरिया. वेटलैंड एरिया है, फॉल्टेड एरिया है एंड इरोडेड है. ठीक है, वेटलैंड टोपोग्राफी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इरोडेड टोपोग्राफी बहुत सारे उसके अंदर फॉल्टेड एरिया है, डाइसेक्टेड एरियाज हैं, एरियाज फुल ऑफ क्रैक्स, यानी कि माउंटेन्स है तो आप देख रहे हैं इस तरह के क्रैक्स आए हुए, राइट.
ड्रेनेज में, अच्छा, सॉल्ट रेंज में हमारे पास कुछ सीजनल रिवर्स आ जाते हैं, काफी लेक्स आ जाती हैं बेटा, और कुछ लेक्स तो आपकी काफी टूरिज्म के हवाले से भी फेमस है। कलर कहार आपकी बहुत फेमस है, जिसपे लोग आते हैं, टूरिज्म भी है। ओके, देन आपके पास है इकोनॉमिक पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्ट रेंज माइन ऑफ कोर्स, उसके अलावा लाइमस्टोन है जिसकी वजह से आपके पास काफी केमिकल्स इससे बनते हैं, पेंट्स बन रहे हैं। चैलेंजेस ऑफ सॉल्ट रेंज की अगर मैं बात करूं तो सॉल्ट रेंज हैज स्टीप, ठीक है, क्लिफ, इरेगुलर लैंड, बार बार हम बता रहे हैं कि इरेगुलर लैंड, फॉल्टेड लैंड, सब ये हो रहा है इरोजनल लैंड फॉर्म की वजह से, ठीक है। डिफिकल्ट फॉर फार्मिंग है, ओके, डिफिकल्ट फॉर फार्मिंग, सेटलमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, क्योंकि अगर हम रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पैडलैंड टोपोग्राफी है बेटा, आपके पास कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट है। सॉइल इनफर्टिलिटी हो रही है यहाँ पे, इस इलाके में बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट कंटेंट है जिसकी वजह से यस आपकी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। ओनली लिमिटेड पैचेस ऑफ फर्टाइल लैंड आर अवेलेबल, थोड़ा सा हमारे पास फर्टाइल लैंड अवेलेबल है, थोड़ा सा इतना सा भी नहीं है, छोटा सा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे पास एक अच्छा खासा एरिया है, लेकिन हम एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज वी आर सेइंग दैट limited area of fertile land available, transportation में yes difficulty है due to narrow valleys and steep slopes, ठीक है। mining areas are hard to access because of the modern machinery। environmental challenges की अगर बात करें तो ओवर माइनिंग ऑफ सॉल्ट, देखो जब ओवर माइनिंग ऑफ सॉल्ट हो रही है तो एनवायरमेंट में आपके पास वो डस्ट सॉल्ट प्रेजेंस ये आपके एनवायरमेंट में मौजूद है। ओके, डस्ट पोल्यूशन, माइनिंग इफेक्ट्स फॉर द सेटलमेंट्स, राइट। तो these are all the basically challenges of salt range and Totwa Plateau that we have discussed with you. I have tried my level best to discuss all the features with you. Hope my video will help you out in covering this topic. For this, I am signing out. Thank you everyone. Please do like and subscribe my channel. Take care everyone. Allah Hafiz.